माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का है, रीड प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 2। तो लुक हियर, the electrostatic force on a small sphere of the charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 m. First question given that, what is the distance between the two spheres? So we want to find the force between two charges. Okay. Second question given that, what is the force on the second sphere due to first? We want to find first sphere, what force is applied there. This is mentioned that 0.2 Newton. But in second questions we want to find the force between second to first. Okay, so later on I will tell you. So first we want to find the distance between two charges of the which value is given that. Okay, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस r फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो दिया गया है, राइट डाउन, गिवन दैट क्या दिया है, व्हाट इज गिवन दैट, सी द फिगर, सी द क्वेश्चन। फर्स्ट चार्ज इज गिवन दैट, फर्स्ट स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज 1 इक्वल टू, सपोज दैट चार्ज, ठीक है, Q1 इक्वल टू what value is given that 0.4 microcoulomb. So you know 1 microcoulomb equal to how many coulombs? 10 to the minus 6. So place of this you can write 0.4 10 to the minus 6 coulomb. So charge Q1 equal to 4 into 10 to the minus 7 coulomb. In this way we will write the second charge. So charge Q2, suppose that second charge is Q2 and then this value is minus 0.8 microcoulomb. This is mentioned. If you convert in coulomb, so you can write minus 0.8 10 to the minus 6 coulomb. Okay. And you can write like as this also, 8 into 10 to the minus 7 coulomb. And second is this, first is this. Okay, minus sign is given. Means Q1 is the positive charge and Q2 is negative charge. Then between of both charges you can see what force will be applied. Attraction force will be there. Different charges are there, the attraction force will apply between the charges, and if we both are same charge, so repulsion force is there. Okay, so no matter ki here positive charge, matlab attraction force is there or the repulsion force is there, but we want to find the distance between both. So how you can write, force is given that F12, force on charge 1 due to charge, यहाँ पे Q1 लिख सकते हो, Q1 due to charge Q2 is given by the relation. रिलेशन कहाँ है? रिलेशन द क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यूज F12 वेक्टर इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ये लिख सकते हैं ना। F12 क्या है? 0.2 न्यूटन। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दैट? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू F12 इक्वल टू, कौन बताएगा? एनीवन कैन से? कोलंबियन फोर्स K
Q1 Q2 upon R square. This is formula of Coulombian force. Suppose that this is question number 1. But in question number A have given that what is the distance between the two spheres. So we want to find the K Q1 Q2 by F12. Okay. Now substitute the value of, this is question number 2. So have you written these values? Have you written R square equal to K Q1 Q2 upon R square? Okay. So now substitute the values of, putting the value of K Q1 Q2 and F12 in equation number 2, we get. ओके क्या लिखे यहाँ पे? अच्छा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? पहले तो के की वैल्यू बता दो आप। के की वैल्यू क्या है? बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। 9 इंटू 10 टू रेज 9, वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हियर you will substitute the value of K. K is 9 into 10 to raise 9 and value of Q1 4 into 10 to raise 7 minus 7, okay? And Q2 equal to 8 into 10 to raise minus 7, very good. And what is value of F12? Mention here. So you can write 0.2, okay? Now we will try to solve 9 into 4 into 8 into 10 to raise 7, 7, 14 plus 9 divided by 2 into 10 to raise minus 1. So 2 4 ja 8. चलिए आगे कैलकुलेशन आपको करना है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 9 जा 144 होता है ना, तो लिख दो पहले 16 इंटू 9 इंटू 10 टू इज माइनस 5 इंटू 10, 10 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16 9 जा 144 इंटू 10 टू रेज माइनस 4 मीटर, ओके। अभी ये r स्क्वायर है, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट तो 144 इंटू 10 टू रेज माइनस 4, तो क्या होगा, 144 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट कितना आएगा 12, 12 12 जा 144 और इसको लिख सकते हैं 10 टू रेज माइनस 2, ये क्या है मीटर। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू 10 टू रेज माइनस 2 मीटर और 0.12 सेंटीमीटर, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ये तो क्लियर हो गया, यहां तो कोई डाउट नहीं है, अगर है तो पूछो। गलती कहाँ होती है यहाँ पे, ये जो चेंज करते हैं 10 रेज माइनस 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, जो यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं वैल्यूज, यहाँ पे गलती हो जाती है और इसके गलत होने की वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है जिससे रॉन्ग ना हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली फार्मूला याद है, फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें और दिया है भी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो हम बी पार्ट हैव यू रिटन दिस, तो हम सेकंड पार्ट पर बताते हैं आपको। तो देखिए ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्यों सेम होगी ये भी आपको हम बताएंगे।
सपोज दैट ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, जिसका पहला हमने Q1 है, दूसरा Q2। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट एज टुवर्ड्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने सेकंड के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट की वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे F12 है, 1 फोर्स होता है। ठीक है, तो हमें कहने का ये मतलब है कि आप चार्ज तो सेम ही है, और जब चार्ज सेम ही है उन्हीं दोनों के बीच में एक्सचेंज करना है। तो हमने ये भी कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि दोनों फोर्स विल बी इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे इसके थ्रू इसको फाइंड आउट करो फोर्स, चाहे Q2 के थ्रू Q1 पे फाइंड आउट करो, तो हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से F12 इक्वल टू F21। कहने का मतलब दोनों फोर्स इक्वल ही होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि F21 मतलब फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकंड स्फीयर ये है, इस पे जो फोर्स हमें निकालना है F21 इसके अकॉर्डिंग में, तो ये क्या हो जाएगा 21 F12 के बराबर ही होगा। तो F12 की जो वैल्यूज दी गई है बुक में वही आएगी। क्या दी गई है 0.02 न्यूटन। ये तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, बाकी सेम ही है। और यहाँ पे अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात, फोर्स कौन सा लगेगा ये तो पूछा नहीं गया है, फिर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये प्लस है, इसकी वैल्यूज क्या है 0.4 माइक्रोकूलम, और ये माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो बीच में फोर्स क्या लगेगा, बिटवीन बोथ चार्जेस दिस विल बी अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स जो भी कहो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।